پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ پی ٹی آئی فیصلے کے 15 روز میں اپنے مخصوص افراد کی نشستوں کے ناموں کی فہرست دے۔ سننے اتحاد کونسل آئین کے مطابق مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ محفوظ فیصلہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے سنایا۔ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ جتنی ریزرو سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ ہوگی۔ آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابھر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں۔ جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے، فیصلے بعد میں تو آتے ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا۔ بولے کروڑوں عوام اور جمہوری قوتوں کے لیے آج خوشی کا دن ہے۔ آئین میں اپنی مرضی کی ترمیم کا راستہ روک دیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں، جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز بولے عدالتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، فیصلے سے انصاف کا علم بلند ہوا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا آج کے فیصلے سے آئین کا حلیہ بگاڑنے کے ارادے پر عمل کرنے کا راستہ روک دیا گیا۔ ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے اور ایک ایسی جگہ پہ ہونے کی حیثیت سے جس کا تعلق براہ راست قانون اور انصاف کی فراہمی سے ہے، میرے لیے یہ بات تکلیف دہ ہے کہ جو شارٹ آرڈر کی جو ورڈنگ ہے اور جو اس کا متن ہے اور جو اس کا جسٹ ہے، وہ آئین کی پلین جو ریڈنگ ہے، جو سادہ طریقے سے ہم آئین پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کے برعکس ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ کی مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کو اہل قرار دینے کے فیصلے کے بعد گفتگو۔ کہا ہمارے پاس اب بھی 209 اراکین کی اکثریت ہے۔ بولے ابھی پورا فیصلہ نہیں دیکھا، حکومت نظر ثانی کی درخواست دائر کرے گی یا نہیں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اب معزز سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا۔ سنی اتحاد کونسل جو پٹیشنر تھی، جس نے استدعا کی، اس استدعا کی جو ہے وہ جو ہے وہ کامیابی کے لیے یا اسے ثابت کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کے وکلاء نے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے، ان کے کاؤنٹر دلائل جو ہے وہ دوسری طرف سے دیے گئے، تو سنی اتحاد کونسل کی جو ریکویسٹ یا ان کی جو استدعا ہے وہ تو نہیں تسلیم کی گئی، وہ تو خارج ہو گئی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے۔ ایسے فیصلے جو بہام کو جنم دیں کبھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ اگر انصاف بن مانگے دیا جائے تو ایسے فیصلوں کے اثرات انتہائی افسوسناک ہیں۔ انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ اس فریق کو بن مانگے انصاف دیا گیا جو عدالت کے سامنے تھا ہی نہیں۔ اگر اس طرح فیصلے ہوں گے تو اس کے اثرات منفی ہوں گے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ پاکستان سے یہ پاکستان کو پہنچانا چاہتا ہے اور پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ شخص ہم پر تھوپا گیا ہے، یہ شخص ہم پر پلانٹڈ ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا لاڈلا ازم اور گڈ ٹو سی یو کی سیاست ملک میں چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے کنفیوژن پیدا ہوا۔ قانون کی پاسداری ہونا چاہیے، لاڈلوں کی نہیں۔ 2018 کے انتخابات درست تھے، کیا مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا؟ اس فیصلے کو پیپلز پارٹی کے قانونی ماہرین دیکھیں گے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا کوئی عمل کسی سے چھپا نہیں۔ سابق نثار نے بانی پی ٹی آئی کی پشپناہی کی، ایک جھوٹے شخص کو صادق اور امین کہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل، کہا آج اعلیٰ ترین عدلیہ نے آئین کے بجائے سیاسی فیصلہ دیا۔
जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं उसे रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाजों के जगह सियासी तकाजों की अहमियत दी। आइन और कानून की तशरीह के बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। आलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं, पीटीआई सियासी पार्टी है और इसका नाम सियासी पार्टियों की फहरिस्त में भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि उसने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मखसूस नशिस्तें हमारा हक था जो किसी और को दिया गया था, आज हमें हमारा हक मिल गया। जेयूआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। जेयूआई पीटीआई के साथ खैरसगाली का इजहार करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का अदालत उज़्मा के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बोले, उम्मीद है ये फैसला दोनों जमातों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद होगा। फैसला तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुज़ाकराती माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। जो अफराद फैसले से मुतासिर हुए उन्हें अपील के हक से नहीं रोक सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बखारी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपने एक तंज़िया बयान में लीग रहनुमा का कहना था कि मुबारक को ज़ाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और कर्ज जीत गया। आइन और कानून और इदारे सबका क्या है, अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जे हो, सारा मुल्क इन दहशतगर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। इत्तफाकन केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार ख्याल। अदालती फैसले से कुछ जमातों का दोगलापन नया हो गया जो अवाम की राय के खिलाफ नाजायज तरीके से नशिस्तों पर काबिज हैं। बोले, जुडिशियल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस दी जानी चाहिए। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 मुतनाज़ा नशिस्तों में से 65 पीटीआई को मिलने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के 5-8 के भारी अक्सरियत के फैसले के बाद कौमी असम्बली में तहरीके इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 मुतनाज़ा नशिस्तों में से 65 मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। कौमी असम्बली में इससे कबल ख़वातीन की कुल 60 मखसूस नशिस्तों में से इलेक्शन कमीशन ने 40 नशिस्तें मुख्तलिफ सियासी जमातों में बांटी थीं। कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से 10 में से 7 नशिस्तें अलॉट कर दी गई थीं, जबकि 3 बाकी थीं। इलेक्शन कमीशन ने बादअज़ा कौमी असम्बली की बच जाने वाली ये 23 मखसूस नशिस्तों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 5, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम को एक मज़ीद नशिस्त दी थी। लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच का नेपरा को 4 हफ्ते में बिजली बिलों से इजाफी चार्जेस और टैक्सेस खत्म करने का हुक्म। अदालत ने कहा, नेपरा सार्फिन बिजली के एतराज़ात सुनकर गैर कानूनी टैक्स खत्म करे। बिजली के तमाम मुतासरा सार्फिन नेपरा से रुजू करें। दादरसी ना हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में मॉनसून का तूफानी स्पेल, शहर तालाब बन गया। बिजली का निजाम मुतासिर, बारिश के बायस गर्मी और हफ्स की छुट्टी हो गई। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश हुई। लाहौर में मॉडल टाउन, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी और मॉल रोड पर मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में भी मूसलाधार बारिश हुई।
खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशें, लैंड स्लाइडिंग का खतरा, NDMA का इंतबाह। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने खैबर पख्तूनख्वा में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। NDMA की अपनी रिपोर्ट में कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अजला बशमूल चारसदा, चित्राल, लोअर और अपर चित्राल, मानसहरा, पेशावर, चांगला और सवात के इलाकों में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। मुसलसल और शदीद बारिश की सूरत में शहरों में सैलाब और नदी नालों में तूफानी, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और फास्को से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें वीट बोर्ड की रिस्ट्रक्शन की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम और स्पार्को के नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत करते हुए कहा, गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म ने फास्को की निशकारी और गंदम की खरीदारी से मुताल्लिक़ मुतबादिल हिकमत अमली तरतीब देने का भी हुक्म दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्कीर हड़ताल आज भी जारी, जिसके बायस मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। आटे की मिलों और चक्कियों पर ताले पड़ गए, मुल्क में आटे का बहरान सर खाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 300 से जायद फ्लोर मिल्स बंद। फैसलाबाद में भी फ्लोर मिल्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। गंदम की फसाई और आटे की मार्केट में सप्लाई का सिलसिला दूसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद है। मार्केट में सप्लाई बंद होने से आटे की किल्लत पैदा होने लगी। कोयटा में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल जारी। हड़ताल के बायस अशिया फरोनोश की सप्लाई मुअत्तल हो गई। हड़ताल की वजह से सब्जियों और फलों के निर्ख में होशरुबा इजाफा हो गया। 100 में फरोख्त होने वाले आम की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। मंडियों में ताज़ा सब्जियां और फल नायाब हो गए और हड़ताल के बायस दीगर अशिया फरोनोश की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर उमर आफ्ताब ने मुलाकात की, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लीडिंग हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत और नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। मुलाकात के दौरान मरियम नवाज को ब्रीफिंग भी दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम का कहना है कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ग्रुप कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। UN मॉनिटरिंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान तालिबान की जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हमायत में इजाफा हुआ है। TTP को अफगान तालिबान और अलकायदा के धड़ों की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल है। TTP ने बतदरीज पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की तादाद बढ़ाई है। TTP कारिंदों को मकामी जंगजुओं के साथ अलकायदा कैंपों में तरबियत दी जा रही है। अलकायदा की बढ़ती हमायत से TTP खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन सकती है।